just got an interest into digital marketing. Like, why digital marketing? I want to open my own brand, so I doesn't know anything about the digital marketing, and then I found out about this OCP Academy. Yeah. अच्छा. Okay. Okay. So yesterday हम लोगों ने कल basically Google Ads क्या होते हैं in terms of उसकी basic देखे हैं. उसके how do we use that platform? We'll study that today. ठीक है? Can someone please go on mute? I hear a lot of noise. Yes, Mr. sir. Vinod? Yes. Thank you so much. So I was saying that yesterday we saw the basic things, what exactly Google Ads is all about. Okay. And how do we use the platform? How do we, basically run ads on that platform? That we will see today. Hence, I had asked the class to create an account, but I believe everybody couldn't do it. Okay, so no problem. I'll share my screen. Okay, just give me a second. Ma'am, एक Before, बार link please भेज दीजिए once that link please. Acha, sure. I'll send that link again. Yes. Give me a second. I'll do that again. Okay. Before that, if I want to, ask anyone, when I say ad, okay, when you search for a query, okay, on Google, so what type of ads do you see on a search engine result page? Is it a text ad? Is it a display ad? Is it a video ad or any other form of ad? What ad do you see on search engine result page? Display ad. Okay. Salma, would you like to answer that question? When I say search engine result page, what type of ad do I see when I search for a query? Ma'am, I feel it is display ad. Okay. So when we search Ma'am, both I think display ad, video ad, I think both can come. Okay. Let me answer that query for you. So we actually, whenever we search for a query on search engine, we first see a text ad. That is what we call a search text ad. Display is something we see on multiple websites. So when I say multiple website, if you consume content on YouTube, if you consume content on, Times of India or Hindustan Times, वहां पे आप जो देखते हो उसको बोला जाता है डिस्प्ले एड. मतलब जो चीज एक पिक्चर है जिसमें सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बी इट कलर्स, टेक्स्ट, डिफरेंट थिंग्स, वो उस इमेज में जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड. Okay. And the ad what we see on a search engine result page. Now let me show you what exactly search engine result page is. So let me quickly share my screen. This page is known as a search engine result page. Okay. If I may just go back to our search engine again. Whatever query I type. Now today I'll type bag. This is what we call a search engine page. What ads are you seeing here? These ads are known as a shopping ad. These are not your display ads. Okay. Can you see this? This is a text form of ad. Text and a display. But display is something which does not have a, very rich media feel. Okay. It is just a simple page. So this is also a shopping ad, a text format shopping ad. Over here, if you see, there are news which has a text first. Now let me अच्छा. So basically हम आज देखने वाले थे platform. How do we basically run an ad on a platform? Let me do that again for you.
Okay. This is how a Google Ads platform looks like. Okay. Over here, if we see, there are lots of options available. So what are this, basically tabs known as? So first we'll start from a left side. Overview is something where you see the complete overview about any of the campaign you running. मतलब अगर आप सर्च एड रन कर रहे हो या डिस्प्ले एड रन कर रहे हो, ये पूरा एक तरह से आपको समरी देगा इन टर्म्स ऑफ कि कितने क्लिक्स आए हैं ओवरऑल अकाउंट पे, कितने इंप्रेशन आए हैं ओवरऑल अकाउंट लेवल पे. तो एक अकाउंट में देयर इज आप मल्टीपल कैंपेन रन करते हो. व्हेन आई से मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन. आपका सर्च कैंपिंग होता है, आपका डिस्प्ले कैंपिंग होता है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हाट यू रन ऑन एन अकाउंट लेवल. अब जैसे उस अकाउंट लेवल पे आप जाते हो, उसके बाद आपको ये पूरा ओवरव्यू देगा. जैसे अगर आपने डिस्प्ले कैंपिंग और सर्च कैंपिंग साथ में चला रहे हो, तो उन दोनों को मिला के कितने क्लिक्स आए हुए हैं, उन दोनों को मिला के कितने इंप्रेशन आए हुए हैं, एवरेज सीपीसी क्या है, ये रिपोर्टिंग आप अपने हिसाब से you can basically change as well. If you just want to view only impression and click, that is going to be your utmost important metric you want to look at while running a campaign. फिर यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल कॉस्ट. मतलब आपने दोनों कैंपेन मिला के, भले ही आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो या सर्च कैंपेन रन कर रहे हो, तो उन दोनों को मिला के आपकी कितना कॉस्ट हुआ है वो आपको पता चलता है. मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ. ये एक तरह का ग्राफ है. ओके, इस ग्राफ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं, विच इज क्लिक्स एंड इम्प्रेशन. बिकॉज मैं जब ये कैंपेन रन करूंगी इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दिस इज लाइक माई, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, तो मेरे लिए जब मैं उस क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करूंगी तो उनके लिए मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट फीचर या मेट्रिक क्या है, तो वो है मेरा क्लिक्स और इम्प्रेशन. नाउ कमिंग डाउन टू द रिकमेंडेशन पार्ट. Recommendation is something when आपको गूगल, आपके ना जब अकाउंट लेवल पे गूगल आपका हर एक कैंपेन लर्न करता है एज इन वो हर एक कैंपेन जाके इन डेप्थ देखता है, फिर उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देना शुरू करता है. कि अगर कहीं पे कीवर्ड्स है विच आर वो कीवर्ड्स अगर यूजफुल नहीं है, वो उसको बोलेगा कि आप निकाल दो उस कीवर्ड पे, जबरदस्ती अकाउंट में मत रखो. अगर आपको लग रहा है कि ना आपने कोई चीजें अपने कैंपेन में नहीं ऐड करी हुई है, जैसे साइट लिंक एक तरह से इम्पोर्टेंट फीचर है ताकि आपके जो रिजल्ट है उसको ऑप्टिमाइज करने में इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. अगर वो चीज आपने अपने कैंपेन में ऐड नहीं करी हुई है, तो वो उस चीज को क्या बोलेगा कि आप उस चीज को ऐड करो. ठीक है. अगर आपको सजेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर कैंपेन को आप क्लिक लेवल पे कब से चला रहे हो, इसका अभी लर्निंग फेज इज ओवर एंड नाउ यू कैन बेसिकली आप चेंज कर सकते हो बिट स्ट्रेटेजी. अब आप इसको क्लिक्स के बदले कन्वर्जन पे चलाओ, वो भी आपको वो सजेस्ट करेगा. सो रिकमेंडेशन इज समथिंग वेयर गूगल with the help of machine learning, when I say machine learning, it's where Google is learning about each and every campaign of yours on an account level and suggesting you recommendations accordingly. This is something where you will आप अपने insights देखोगे वीक ऑन वीक के ऊपर. ठीक है. When I say week on week, आपको कंपेयर करना है आपने लास्ट 7 days में क्या किया एज अ डिजिटल मार्केटियर. ओके, हम वीक ऑन वीक चेक करते हैं कि लास्ट वीक हमारे बेसिकली क्या परफॉर्मेंस थी, ये वीक हमारे क्या परफॉर्मेंस है. बिकॉज हमारे लिए हर एक दिन का कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट. अगर मैं समझो हर रोज 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, एंड इफ आई से 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया एंड आई गॉट 100 क्लिक्स, मेरा जहाँ पे सीपीसी इज 1 रुपीज, तो एंड वाई अगर मुझे 1 रुपया लास्ट वीक आया है, आई शुड ऑल्सो गेट द सेम 1 रुपी इन दिस वीक एज वेल. बट कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी कभार क्या होता है कीवर्ड्स के कॉस्ट बढ़ जाते हैं या कीवर्ड्स के कॉस्ट कम हो जाते हैं, या फिर कुछ लर्निंग फेज में चला जाता है, तो थोड़े दिनों के लिए ना अपने आप गूगल उस कैंपेन को स्लो कर देता है. इट डजंट स्पेंड जैसा उसने लास्ट वीक स्पेंड किया होगा, इस वीक वो स्पेंड नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीजें हम वीक ऑन वीक चेक करते हैं. That is something because it help us. अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं कैंपेन लेवल पे,
तो वो हम इमिजिएटली कर सके इस पर्टिकुलर इनसाइट से. Then we come down to the search term. Search term is something जब आप कोई कीवर्ड वाला कैंपिंग रन करो, जैसे बेसिकली आप कोई सर्च कैंपिंग रन करते हो, तब क्या होता है कि ना कुछ इररेलेवेंट क्लिक्स भी आती हैं आपको. इररेलेवेंट क्लिक्स कैसी होती है कि आपने समझो अपनी कीवर्ड मैच टाइप रखी है ब्रॉड मैच. अब ब्रॉड मैच में क्या हो गया है कि आपके जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है वो कोई और है ना अपने अलग कीवर्ड्स के साथ भी यूज कर रहा है. तो अगर आपने समझो कैंपिंग रन किया हुआ है मुंबई के लिए, ठीक है, बट मुंबई से क्या हो गया, यू आर गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम दिल्ली एंड इवन फ्रॉम लखनऊ एज वेल, बट दैट इज समथिंग विच इज इररेलेवेंट बिकॉज आपकी सर्विसेज तो मुंबई में है. बट एज एन इंडिविजुअल अगर जो भी बंदा दिल्ली या लखनऊ में बैठा हुआ है वो आपकी कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है बट विद द वर्ड इन दिल्ली इन लखनऊ, तो आपको क्या करना है कि जो आपके बिजनेस के हिसाब से यूजफुल नहीं है, इररेलेवेंट है, मतलब आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती की मेरे पैसे खा रहा है, तो आपको उस कीवर्ड को नेगेटिव लिस्ट में डालना है. बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टर्म से आ रहा है? सो दिस इज वेयर आवर सर्च टर्म रिपोर्ट हेल्प्स अस. ये हर एक मिनट और आई वुड से हर एक सेकेंड अपडेट होता है, बिकॉज दुनिया में इतने लोग हैं दे कीप ऑन सर्चिंग फॉर द सेम टाइप ऑफ थिंग अगेन एंड अगेन. तो अगर मैं बोलूं Shravani or Salma might be two different cities, but they might be searching for the same type of services, but थोड़ा सा modify करके. So when I say modify करके, for example, Salma is she is in Visakhapatnam, so she'll add Visakhapatnam to her query, and Shravani will add Mumbai to her query. That's the only difference. But एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ मार्केटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे देखना कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेरी उसको मेरे कीवर्ड लिस्ट में ऐड करूं और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड करूं. नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट इज मैं थोड़ा सा और उसको ब्रीफली समझाती हूँ. व्हाट एग्जैक्टली इट हेल्प्स यू, इट बेसिकली हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग योर कॉस्ट. सो अगर जो भी इररेलेवेंट क्लिक्स आने वाली होंगी, समथिंग विच आर नॉट यूजफुल टू यू, basically the keywords which are not useful to you as per your business or as per your targeting area, आप उसको हटा दो ताकि आप उस पर स्पेंड ही ना करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका काम है बेसिकली आपको रिजल्ट देना. आपका काम है इसको इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना ताकि आप एक पैसा ज्यादा मत दो अपने बजट के हिसाब से. सो हम हमेशा क्या होता है कि अरे ये प्लेटफॉर्म ने हमारा पैसा खा लिया, ये प्लेटफॉर्म पे हमने ट्राई किया बट दिस नॉट हेल्प मी, ये प्लेटफॉर्म इट हैज इतने सारे इसमें प्रॉब्लम्स है. इट्स नॉट द प्लेटफॉर्म, इट्स एन इंडिविजुअल जो इस कैंपिंग को ऑप्टिमाइज करता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आपकी जो सर्विसेज है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो सिटी में है या जो टारगेटिंग के हिसाब से है, वो आप वैसे ही उसको सेटअप करो. मजा ले ये प्लेटफॉर्म फिर एक पैसा आपका एक्स्ट्रा खर्चा कर दे, नॉट पॉसिबल. When and where ads are shown, this is something more, if I may say, when ads showed, so यहाँ पे आपको ना एक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कौन से डे पे, कितने घंटे पे, कौन सा कैंपिंग है, which is working well for you. So if I may say, on Monday, a particular camping is working really well. Okay, आपने डिस्प्ले कैंपिंग और एक सर्च कैंपिंग स्टार्ट किया हुआ है, आपको है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं सर्च कैंपिंग से ऑन अ मंडे और एट अ स्पेसिफिक आवर. मैं स्पेसिफिक आवर जैसे बोलूंगी दिन में जो है ना 12 से 2 के बीच में आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है. तो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज द कैंपिंग. फिर वेयर एड शोड, कहाँ पे दिखाया जा रहा है मेरा एड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर मैं बोलूँ ये यूट्यूब या डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्या प्लेसमेंट है इसकी. So when I say placement can be in the form of the different ad banner size, या फिर यहाँ पे जो बेसिकली पब्लिशर्स के वेबसाइट होते हैं उनके नाम भी आते हैं, या फिर एप्स अगर आप यूज करते हो, अगर आप कैंडी क्रश खेलते हो या फिर आप कोई भी गेम खेलते हो तो उस पे ना बीच में कभी कभार एड्स आ जाती है. इफ इट इज नॉट अ पेड वर्जन, इफ आई टेक एन एग्जांपल, हमारा स्पॉटिफाई ले लीजिए आप. स्पॉटिफाई अगर पेड वर्जन नहीं है तो आपको बीच में एक एड्स आ जाते हैं. तो दैट इज हाउ योर एड हैज बीन प्लेस्ड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एज वेल. डिवाइसेस अगेन, कहाँ पे कौन से डिवाइस पे मुझे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है. तो
एज अ मार्केटर हम क्या करते हैं, अगर हमें एक कैंपिंग के बारे में ना थोड़ी और इन डेप्थ लर्निंग करनी है, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर लेवल के लिए, व्हेन आई से कंप्यूटर इज गोइंग टू बी योर लैपटॉप, योर डेस्कटॉप, your normal computer as well, which has a big CPU. That is what we call a computer here. वो क्या कर रहा है, इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू लर्न कि कौन से डिवाइसेस से मुझे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, बेसिकली मेरी ऑडियंस मुझसे कहाँ ज्यादा एंगेज हो रही है, कौन से डिवाइस से ज्यादा एंगेज हो रही है. सो दिस इज समथिंग विच हेल्प्स हिम. अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे कोई कैंपेन डिजाइन करना है फॉर फ्यूचर, ओके, फॉर अ नेक्स्ट मंथ, मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे सोचना है कि हाँ अब मुझे कैंपेन है ना बेसिकली डिजाइन करने की जरूरत है. what I'll do is I'll do as per my devices का numbers as well. तो अगर मैं बोलूँ मुझे कंप्यूटर से ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, या मुझे कंप्यूटर से ज्यादा आई वुड से क्लिक्स आए हुए या इम्प्रेशंस आए हुए हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक अलग बजट दे के रन करूंगी. सिमिलरली अगर मोबाइल से मुझे ज्यादा इंटरेक्शन मिल रहा है या ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर कैंपेन को मोबाइल के डिवाइस के साथ रन करूंगी. दैट मीन्स आई ओनली विल टारगेट mobile devices here, and I will design a campaign which will target only computer devices here. Similarly for tablets, I'm sure tablet is something which is a very rare case. बहुत कम लोग टैबलेट यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ओनली अ मोबाइल फोन और इधर अ कंप्यूटर. आप एक कॉम्बिनेशन कर सकते हो. इफ यू वांट टू जस्ट वांट टू हैव मोर कॉम्बिनेशन, आप कंप्यूटर और टैबलेट को एक तरह से रन करो, एंड मोबाइल फोन एंड टैबलेट को एक तरह से रन करो. Just to see how that particular combination is helping you. Then we come down to the landing page here. Now when I say landing page, this is basically helping you to know the quality score, or I would say the quality of your particular landing page. मतलब उसकी mobile speed score क्या है, is it something which is mobile friendly है या नहीं, ठीक है. फिर हम उसको देखेंगे कि उस पे क्लिक्स कैसे आ रहे हुए हैं, ठीक है. फिर उस पे इम्प्रेशंस कैसे आ रहे हैं. दिस इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू लर्न कि मुझे क्या क्या चेंजेस करना है, ताकि इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे ना, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है, तो मेरी स्पीड क्यों स्लो होगी एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज की, बिकॉज वो होगी स्लो बिकॉज ऑफ द इमेजेस जो हम अपलोड करते हैं वो थोड़े हैवी हो जाते हैं. अगर हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो उस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा बेटर हो सके. व्हेन आई से ऑप्टिमाइज, बेसिकली हमें थोड़ा सा फाइल का जो साइज है वो कम करना होगा, ओके, एंड विच विल हेल्प अस टू बेसिकली रन और यूज आवर लैंडिंग पेज टू आवर कैंपिंग, तो उसको हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सके. Then we talk about the expanded landing page. Expanded landing page is something, it's basically वो आपके ऊपर है. अगर आपको उसको ऐड करना है तो यू ऐड अ सर्टेन सर्फिक्स. अभी आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, अगर मैं बोलूँ हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जैसे टीओआई पे ना, यू हैव मल्टीपल कैटेगरीज जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया. तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सपैंडेड लैंडिंग पेज देखते हो, आप थोड़े से उसमें चीजें ना ऐड कर देते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर ना देखना है कैसा है मेरा स्कोर. Now coming down to the camping level. What is camping over here? Camping is basically, this is something what I'm talking about at an account level. Camping is basically the second, one of the hierarchy on an account level. And now let's create the camping here. I'll click on this plus button. अगर आप यहाँ देखोगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं. One is the new campaign, second is resume camping draft, and third is the load camping setting. When it comes to a new camping, that is basically a fresh camping you want to basically start with. Fresh camping with the fresh keyword, fresh targeting, fresh creatives, everything would be fresh here. When we talk about resume camping draft, क्या होता है कि आपने एक camping बनाना शुरू कर दिया, but आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ चीजें अभी भी मेरे स्ट्रेटेजी लेवल पे काम करनी है, सो यू विल स्टॉप वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर कैंपिंग. यू विल वो चीज डिलीट नहीं होती है, ओके, इट डजंट गेट डिलीटेड, इट विल बी सेव्ड एज अ ड्राफ्ट ऑन योर डैशबोर्ड. दैट मीन्स अगर आपने समझो सोच लिया कि हाँ मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है अभी भी कैंपिंग लेवल पे,
तो आप रेज्यूम करोगे उस कैंपिंग ड्राफ्ट को और उस चीजों को चेंज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू क्रिएट अ फ्रेश न्यू कैंपिंग ऑल टुगेदर. लोड कैंपिंग सेटिंग, मगर आपने कोई कैंपिंग रन कर रही हो, ठीक है, आपने कोई शुरू कर दिया है कैंपिंग एंड यू सी यू आर गेटिंग अ बेटर रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो आप क्या करोगे, उसी कैंपिंग को डुप्लीकेट करना चाहोगे. दैट मीन्स यू वांट टू हैव द सेम सेटिंग, okay, of that earlier camping what you were running, and you will want to replicate that camping. Okay, so that is the difference between in all the three options here. Now let me click on the new camping here. Now we come down to the objective part. Where what is objective? यानी basically हमारा goal क्या है इस particular camping का. तो इधर हम सेल्स देख रहे हैं या हम लीड्स देख रहे हैं या फिर हम चाह रहे कि हम ट्रैफिक लेके आए हमारे वेबसाइट पे, या फिर हम एंकरेज करें ऑडियंस को कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सप्लोर करें. देन वी टॉक अबाउट ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस. ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस इज बेसिकली you want to reach out to a broader audience, and आपको अपनी कैंपेन, अब बेसिकली अगर आप न्यू हो मार्केट पे, so that's where you'll do a branding and awareness campaign. That means you want to educate, you want people to know about your service, product you have to offer. So this is one of the best campaign strategy or an objective to start with if you are new to the market or if you are new to the platform as well. App promotion. App promotion is something if you have an app for your particular service, for your particular product, or for your particular, any kind of an activity, okay, that even if you have your own game, आप उसको क्या चाहोगे कि you'll do an app promotion. That means you'll do a campaign to, get more install, more engagement, and if there is any, registration activity, it has to be done. लोकल स्टोर विजिट. तो अभी अब मैं बोलूँ, अगर आपके पास लोकल स्टोर है, जैसे अगर हमारा डीमार्ट हो गया या बिग बाजार हो गया, तो द लोकल स्टोर्स हियर. अब हम क्या चाहेंगे कि वाया दिस ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे फुटफॉल एज इन हमारा बेसिकली थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मेरे स्टोर पे भी लोग विजिट करें. So that is something where we will do a local store visit and a promotion campaign. Basically यहाँ क्या होगा कि आप एक एड्रेस दोगे, आप डायरेक्शन दोगे, ताकि लोग आपके स्टोर पे आ सके. एंड अगर आपने आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आपका कोई गोल क्लियर नहीं है कि आई वांट टू हैव सेल्स वाला कैंपेन और इफ आई वांट टू डू अ लीड जनरेशन कैंपेन, इफ यू आर नॉट बेसिकली क्लियर कि अभी मुझे फिलहाल मैंने डिसाइड ही नहीं किया है, you can create a campaign without a goal as well. Okay, this is the beauty of Google Ads कि आपको एक फ्री हैंड मिल जाता है कि हाँ यार मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. वंस यू सी कि आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन ने लर्न करना शुरू किया, स्टार्टेड गिविंग यू द रिजल्ट, एंड देन प्रोबेबली यू वांट टू आर यू क्लियर कि हाँ नाउ माय गोल इज क्लियर, आई वुड वांट टू सी कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस से मैं कौन से ऑब्जेक्टिव पे यूज कर सकती हूँ. Now I'll quickly use branding and awareness as one of the objective. जब हम branding and awareness choose कर रहे हैं, we see the what type of campaign we can go ahead with. So हर एक objective के लिए you can run different type of campaign. When it's branding and awareness, you can run a display campaign and a video campaign. Why display and video? Because this is something which is a visual treat to your audience. Basically आप क्या चाह रहे हो कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा visual दिखाएं. बिकॉज जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, व्हेन आई से इमेज इज बेसिकली क्रिएटिव, आप उसमें क्रिएटिव में टेक्स्ट डालते हो, आप उसमें थोड़ा सा कलर्स ये करते हो, थोड़ा अपने स्टोर की इंफॉर्मेशन देते हो इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. तब आप जब ये सारी इंफॉर्मेशन देते हो, द ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस इज लाइक पीपल वुड स्टे एंड लुक एंड टेक एन एक्शन अकॉर्डिंगली. अगर मैं बोलूँ आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, YouTube पे ना एक वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक एड शुरू हो जाती है. दैट इज ऑल्सो इज वन फॉर्म ऑफ अ डिस्प्ले एड. दैट मीन्स आप अपने इंडिविजुअल ऑडियंस को बोल रहे हो कि आप पहले हमारे एड के साथ एंगेज कर रहे हो. ठीक है, वंस दी एड इज गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट, जैसे मतलब ऑडियंस ने उस चीज के साथ एंगेज कर लिया है, देन आई एम श्योर दे विल टेक एन एक्शन अकॉर्डिंगली. Then let me just quickly go for sales. When it's a sales campaign, you get so many campaign type which you can go ahead with.
you can run a search campaign. When I say search campaign, again, it's a text format, okay, where you can, come in right in the front of your customers on the search engine result page. Performance max. This is something which has been newly launched by Google. This is a more of a conversion campaign. Okay, so if you are looking for a purely sales and sales, okay, that's where आपका objective है कि भाई मैंने जितना spend किया है मुझे उसके उतने returns आने ही चाहिए. तो हम अगर हमारे डिजिटल मार्केटिंग टर्म में इसको बोले तो इट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज रिटर्न ऑन एड स्पेंड. कन्वर्जन इज समथिंग व्हिच इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड. एड स्पेंड इज बेसिकली, अगर मैं बोलूं मैंने 100 रुपया खर्चा किया तो एटलीस्ट मैंने एक कस्टमर लाना चाहिए, भले मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 200 रुपए हो या 50 रुपए हो, मुझे एक कस्टमर चाहिए. सो दैट इज वेयर वी गो अहेड विद द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन. Display camping. Display camping is another form of running a sales camp, basically with the sales objective. जहाँ पे आप एक CTA डाल देते हो, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था एक डिस्प्ले एड, वहां पे आप कॉल टू एक्शन डाल देते हो. इफ यू वांट someone to visit your store, if you want someone to buy your product, either if you want them to learn more about your product or services, आप एक CTA के साथ दे सकते हो. And the display is something which you can reach out to as many users as you want, because when it comes to Google, इनके साथ बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं वो साइन अप करते हैं so that they can get traffic on that particular website, and that's how they want to run ads on their websites here. Then we come down to the shopping campaign, again another form of a sales objective के लिए. तो शॉपिंग कैंपेन में क्या कर रहे हो आप बेसिकली ये कर रहे हो कि आप यहाँ पे सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो. अगर आपकी एनी प्रोडक्ट्स है, इफ यू आर इनटू क्लोथिंग, इफ यू आर इनटू शूज, इफ यू आर इनटू बैग्स, इवन इफ यू आर इनटू योर एफएमसीजी प्रोडक्ट, जैसे आप टूथपेस्ट हो गया हो, टी हो गया हो, एनी प्रोडक्ट इफ यू टेक, यू कैन डू अ शॉपिंग कैंपेन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. देन योर वीडियो इज अगेन वन फॉर्म ऑफ वेयर यू वांट टू लीड सेल्स. सेल्स में कैसा होगा कि आप यहाँ पे एंड में कॉल टू एक्शन दे दोगे कि कम एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम अ वेबसाइट. दैट्स वेयर आप यहाँ पे एक बेसिकली कॉल टू एक्शन भी दे रहे हो और कहाँ से प्रोडक्ट बाय करना है वो भी डाल देते हैं. देन वी कम डाउन टू द डिस्कवरी. Discovery is another way of running a conversion ads where you can run ads on different platform of Google, or I would say different products of Google. It is giving you an opportunity to be there on every platform. आपको अलग से वीडियो कैंपेन रन करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से डिस्प्ले कैंपेन रन करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से जीमेल के लिए कैंपेन रन करने की जरूरत नहीं है. आप सारा चीजें एक पर्टिकुलर कैंपेन टाइप के साथ रन कर सकते हो, विच इज डिस्कवरी. So if I quickly look at the particular campaign type, तो मैंने ले लिया सर्च, मुझे सर्च रन करना है. Now what I would what exactly my goal is after this particular campaign type के selection के साथ. अब मुझे देखना है कि यार अब मैंने ना कंटेंट लिखना शुरू किया हुआ है. Now I want people to come and visit my website. That is one form of a goal here. Secondly, if I am expecting calls, if you are आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, या फिर इफ यू आर अ लोकल किराना स्टोर एज वेल, आपको फोन कॉल्स आएंगे फॉर अ बुकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट की, आपकी कोई किसी की कोई डिमांड होगी तो आप उसके हिसाब से फोन कॉल के भी आप कर सकते हो यहाँ पे कैंपेन. देन वी से स्टोर विजिट. एज आई मेंशन, अगर आप डीमार्ट हो या कोई भी लोकल किराना वाला हो एंड यू आर लुकिंग फॉर द कस्टमर टू कम डाउन टू योर शॉप and buy products or either even come and check out, that's how you want to increase the footfall. When I say footfall, that's where you are looking for people to come and visit your store. That is one of the other objective you can go ahead with. Then you have app downloads. अभी आपने app installation के लिए तो we have one of the objective, but sales is also giving you one of the goals that अगर आपको चाह रहे हो कि आप app download करवा लो, that is also can be achieved via the sales campaign as well. आप यहाँ चाहोगे तो आप ये सारे सेलेक्ट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ, या फिर आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव पे रन करना, कोई एक ऑब्जेक्टिव पे भी रन कर सकते हो. Now I want to track my sales as my website conversion. So मैं जब
कोई भी सेल्स की एक्टिविटी होगी, जैसे अगर हम Amazon पे जाते हैं, वी गो फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एक जर्नी शुरू हो जाती है। जब हम Amazon पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट देखते हैं, हम रिव्यूज देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक जर्नी शुरू हो जाती है एज एन इंडिविजुअल। जैसे हम कार्ट तक पहुंचते हैं, ओके, ये जो जर्नी है, ये ट्रैकिंग जो हम प्लेस करेंगे हमारे वेबसाइट पे, ये ट्रैकिंग उस चीज को स्टडी करता है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल हमारे वेबसाइट पे आया, वो कौन से कैटेगरी पे गया, उसने कौन सा कीवर्ड सर्च किया, वो कहाँ जाके उसने कितना टाइम स्पेंड किया, उसने क्या रिव्यू किया, उसने क्या कंपेयर किया। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस, बेसिकली अगर उस पर्टिकुलर बंदे ने चेकआउट नहीं किया, उसने पेमेंट नहीं की, ही जस्ट लीव दिस साइड एब्रप्टली, मतलब एब्रप्टली एज इन उन्होंने बेसिकली क्या किया कि पेमेंट किया ही नहीं और उन्होंने वेबसाइट छोड़ दी। तो क्या हो रहा है कि क्यों छोड़ी साइट, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, इज इट, सो दिस इज समथिंग, द कन्वर्जन ट्रैकिंग हेल्प्स यू टू स्टडी कि हाँ, मुझे मेरे पेमेंट के जो डिटेल्स है मुझे वहां पे थोड़े चेंजेस करने चाहिए, या फिर अगर ये जर्नी बहुत लंबी हो रही है चेकआउट करते करते, तो मुझे उस जर्नी को थोड़ा कम करना चाहिए। फिर अगर मुझे चाहिए तो मुझे थोड़े ना प्रोडक्ट के और डिस्प्ले डालने चाहिए, ताकि क्लाइंट को या फिर इंडिविजुअल को समझ में आए कि सी दिस इज व्हाट माय ऑफरिंग्स आर। So that's how it helps you. And then you come down to the camping name. Camping name एकदम simple रखना, because you will be using this camping name across on even on your landing page as well. तो जब आप ये चीजें ट्रैक करोगे, आपको देखना होगा गूगल एनालिटिक्स पे भी कि अगर मैंने कोई कैंपिंग रन किया है ऑन गूगल एड्स, तो उसको ट्रैक करने में भी मुझे इजी होना चाहिए। तो आप कैंपिंग नेम को बहुत सिंपल रखिएगा। Okay. Any questions, any concerns so far after till the first step? Okay, I'll take it as a no. Now if you see why did I get that option, because मैं already पहले 2 कैंपिंग बना रही थी, इसलिए उसको मैंने ड्राफ्ट में रखा हुआ है। तो गूगल इज आस्किंग मी कि आपको नया स्टार्ट करना है या आपको बेसिकली पुराने कैंपिंग को ही रिन्यू करना है या बेसिकली रिफ्रेश करना है। नाउ वी कम टू द बिडिंग पार्ट। Bidding is something where we want to focus on. Now if I want to focus on clicks, either if I want to focus on impression share, और आप जैसे कैंपिंग टैग शुरू करोगे, आप जैसे कैंपिंग लेवल पे या फिर आप जो भी ऑब्जेक्टिव यूज करोगे, आपको यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन अलग अलग आते रहेंगे। तो अगर मैंने कहा कि ना मुझे अभी फिलहाल क्लिक्स पे ऑप्टिमाइज करना है, व्हेन आई से क्लिक्स, आई वांट पीपल टू क्लिक ऑन माय एड, दिस इज वेयर एज अ मार्केटियर मैंने अगर पेमेंट अगर करनी है या मुझे गूगल चार्ज करेगा, वो क्लिक्स बेसिस पे ही करेगा। सो आई गो ऑन क्लिक्स। Okay, now this is something which is an optional if you want to set a maximum cost per click bid limit or no. If no, then we can go for next. Over here, if you see, you get an option to run the campaign on 2 partners, which is search partner and a display partner. या में मतलब अगर मैंने कैंपिंग शुरू किया हुआ है, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन होगा ऑन अ गूगल लेवल, वो क्या करेगा, इस कैंपेन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा या इस कैंपेन को इस तरीके से रन करेगा। बेसिकली वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट जाके स्टडी करेगा, वहां से थोड़ी इंफॉर्मेशन लेगा एंड उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा कि वो सर्च और डिस्प्ले दोनों पे दिखे। ये आप चाहोगे, इफ यू वांट, you can unselect this option as well. अगर आप चाह रहे हो कि आप सिर्फ सर्च नेटवर्क पे रन करो या फिर आप सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क पे रन करो, you can do that. So मैं बोलती हूँ मुझे सिर्फ सर्च पे रन करना, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे देखना कि मुझे कितने क्लिक्स आ रहे हैं। So I will only go for the search partner here. That means I can off this particular setting here. Now we come down to the location part. When I say location, of course, when you are running a camping, आप चाहोगे कि आपकी ऑडियंस वहीं से आए जहां पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड हो। अगर आप आपने मुंबई में कोई बिजनेस शुरू किया है,
तो दैट मीन्स आप जो ट्रैफिक देख रहे हो या जो आप ऑडियंस देख रहे हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ट्राई करें, वो मुंबई की ही होनी चाहिए. एंड आई एम श्योर जब ये चीजें एक्सपैंड होंगी, यू नो व्हेन यू गो पैन इंडिया, यू गो इन डिफरेंट सिटीज प्रोबेबली, दैट्स वेयर यू वांट टू ऐड दोज मल्टीपल सिटीज इन योर कैंपिंग एज वेल. तो अगर समझो आपने एक्सपैंड किया मुंबई से दिल्ली, या यू नो यू आफ्टर दिल्ली यू एडेड बैंगलोर, तो आप वो सारे सिटीज को यहाँ पे लोकेशन लेवल पे डालते जाओगे. एज ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, दिस इज समथिंग व्हिच इज ग्लोबली. ग्लोबल याद मतलब आपको यहाँ से ट्रैफिक आएगा, यूएस से भी आएगा, यूके से भी आएगा, यू नो यू विल गेट इट फ्रॉम यूएई एज वेल, दैट इज मिडिल ईस्ट. आपको साउथ ईस्ट एशिया से भी आएगा ट्रैफिक. तो आपको यू नो बेसिकली ग्लोबली ये ट्रैफिक आता रहेगा. Then there is particular traffic you will only get from United States and Canada, because there are certain businesses which you know you might feel कि वहां पे allowed है, हमारे यहाँ allowed नहीं है. तो आपने कोई किया ना बेसिकली सर्विस लॉन्च करी हो, या फिर आपने कोई ऐसा कंटेंट पीस लॉन्च किया हो जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट या कनाडा की ऑडियंस के लिए ही है, आप सिर्फ वहां का ट्रैफिक भी ले सकते हो. सिमिलरली this is something which is, you know, another way of, you know, if you want to only get United States. Now this particular account is for, you know, ये USD लेवल पे है. बेसिकली मेरा जो ये अकाउंट है ये मैंने यूएस के ऑडियंस के हिसाब से बनाया हुआ था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है. अगर आप चाहोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया दिखेगा. अगर आप इंडिया के ना, इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया and you're creating this particular, you know, basically account, तो आप यहाँ पे जो settings यहाँ पे दिखेगी वो यहाँ पे इंडिया दिखेगी instead of United States. Then if you have a specific location, when I say specific location, let me just, if it is a particular country, a city, region या postal code, तो अगर आप समझो मुंबई में हो, तो मुंबई में we have a lot of zip codes available. ठीक है, तो मुझे इस पर्टिकुलर जिप कोड या यू नो पिन कोड को ही टारगेट करना है. आई कैन डू दैट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल. उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एडवांस सर्च. ओके, एंड इफ आई वांट टू ऐड लोकेशंस इन बल्क, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सारे ना पिन कोड डाल दूंगी विच आई वांट टू टारगेट ऑन. ओके, if I want, you know, कि certain location, I don't want to show my ads to a certain location. अगर मैं बोलूँ कि ना इंडिया में मैं हूँ एंड माई प्रोडक्ट इज यू नो ओनली बेस्ड फॉर द मेट्रो सिटीज, मतलब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यू नो इफ आई मे टॉक अबाउट बैंगलोर, बट देयर आर स्पेसिफिक यू नो थिंग्स इन मुंबई एज वेल. अगर मैं मुंबई में बोलूँ तो मुंबई इज वेरी वास्ट. मुंबई में अगर मैं चाहूंगी कि सिर्फ सबर्बन्स को दिखाया हो, या सिर्फ टाउन वाली ऑडियंस को दिखाओ, या फिर मैं सिर्फ यू नो हार्बर और यू नो सेंट्रल लाइन को दिखाओ, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूजन्स भी डाल सकती हूँ कि आई वांट ओनली यू नो पीपल, ये वाले जो सिटीज है या ये वाला जो पार्ट है, आई डोंट वांट टू बी देयर, बिल्कुल को दिखाना ही नहीं है. दैट मीन्स आपका वहां पे बजट स्पेंड होगा ही नहीं. देन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज पार्ट. अब आपने कैंपिंग डिजाइन कर लिया है, आपने कैंपिंग रन कर लिया है, नेक्स्ट व्हाट नाउ इज द लैंग्वेज. लैंग्वेज इज समथिंग विच प्लेज अनदर इम्पोर्टेंट रोल. अगर आप समझो यू नो बेसिकली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए आपने ना कंटेंट लिखना शुरू किया है, ओके, योर कंटेंट इज प्योरली बेस्ड फॉर यू नो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज टारगेट कर सकते हो हिंदी. यानी बेसिकली whoever speaks Hindi will only be shown your ad. So if I just go and select Hindi as my language, I can basically show the ad only to my Hindi speaking audience. अगर आप मराठी स्पीकिंग ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, आपका कंटेंट इज समथिंग व्हिच इज फॉर अ मराठी ऑडियंस, यू विल गो एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑडियंस हियर. एंड अगर आप देख रहे हो कि नहीं मेरी इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को मेरा कंटेंट दिखाऊं, तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करो. दिस इज यू नो समथिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि इररेलेवेंट ट्रैफिक आए आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, या फिर आप यू नो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करो जो ऑडियंस के ऊपर जो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके कंटेंट के लिए. Then we come down to the audience segment part. Now when we say audience segment, यहाँ पे बेसिकली हम टारगेट करेंगे कि मेरे एड्स ये दिखेंगे किसको. So
इफ आई मे से मेरा ये जो अकाउंट है दिस इज फॉर अ स्कूल, तो अब मेरी जब स्कूल है तो स्कूल में हम कौन से ग्रेड्स को देखते हैं, हम देखते हैं किंडर गार्डन से लेके 5th स्टैंडर्ड तक इज वन ग्रेड आई एम लुकिंग एट. आई वांट टू टारगेट पेरेंट्स who are looking for education for this particular classes for their kids. Then हमारा हो गया from your 6th standard till your 12th standard. मुंबई में we have 6 से लेके 10th standard. And then हमारा 11th और 12th अलग होता है. So that is our high school. तो हम उसके हिसाब से हमारे ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे. तो मेरे जो अगर मैंने बोला है मैंने इस पर्टिकुलर कैंपिंग को शुरू किया है तो मुझे सिर्फ दिखाना है कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल विच इज K to 12. Okay, there are schools in Mumbai as well which offers kindergarten से लेके 12th standard तक एक ही जगह होता है. तो that's where I want to target कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लो. Then you'll go for basic thing. There are parents who are be interested in the education. They want to look out for childcare and education. Okay, if somebody is looking out for any early childhood education. So when I say early childhood education, this can be your kindergarten, pre-kindergarten या फिर आपके प्री स्कूल्स हो गए हो, ये उनके लिए है. मैंने अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर ली यहाँ पे. नेक्स्ट आई गो फॉर, now this is the additional settings which you would like to do it in your camping level. Optimize on best performing ad. अब आपने क्या किया, आपने 2-3 एड्स एक साथ चला रहे हो, ठीक है, आपने वहां पे कर दिया. अब व्हेन आई से बेस्ट परफॉर्मिंग एड इज मे बी इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, एक एड को बहुत अच्छे क्लिक्स आ रही है बिकॉज दैट इज योर बिट स्ट्रेटेजी, तो उसी एड को ही हम ज्यादा दिखाएंगे. Similarly, if you want, कि नहीं, I don't want to show, the clicks जिसको ज्यादा आ रही है उस एड को, तो मैं क्या करूंगी, इवनली मैं चाहूंगी कि मेरे सारे कैंपिंग रन कर या मेरे सारे एड्स रन करें. That's where I would, go and click on this particular option that rotate ads indefinitely. That means मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से एड पे ज्यादा क्लिक्स आ रही है या कौन से एड्स पे ज्यादा इंप्रेशन आ रही है. आई वॉन्ट कि इक्वल ही मेरे सारे एड्स रन करे. दैट मीन्स मेरे हर एक एड में अलग अलग मैसेजेस हैं एंड आई वॉन्ट कि मेरे हर ऑडियंस को वो मैसेज पहुंचे. तो this is the option for the people who are running multiple ads, for the different audience under one campaign. Then I'll go on next. Now I want कि basically Google थोड़ी सी मेहनत करे. If you have कि आप नहीं पता कर पा रहे हो कि मुझे क्या कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, if you are not able to do it, आप यहाँ पे बेसिकली अपनी वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज का URL डाल दो. When I say URL is basically your website. आपने यहाँ पे डाल दिया समझो www.google.com, ठीक है, and then what product या services this particular website has to offer. So if I may say, they have to offer advertising products to us. Okay, this is one of the keywords I'm looking out for. Now I will go and let Google do the मेहनत for me. मतलब जो हम कीवर्ड प्लानर कल देख रहे थे, बेसिकली वहां पे जो हम 3 ऑप्शंस देख रहे थे, वही चीज आपको कैंपिंग लेवल पे भी मिलती है. आप यहाँ पे कीवर्ड सजेशंस खुद भी यहाँ से ले सकते हो. You don't have to go on a keyword planner separately and look out for the keywords out there. Now this particular platform is searching for the keywords. Can you see? ये automatically आ गया. That means this particular platform has studied your website and has looked for the keywords which are relevant to your website and your audience and shared the keywords with you. So of course जब Google की बात आएगी तो Google कौन से एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स हमें ऑफर करता है उसके हिसाब से हमें कीवर्ड मिल गए हैं. जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग, Google PPC, Google Ads Marketing. Then we have video marketing or internet marketing. So they have basically, this types of products to offer us, as an advertising activity. हमने keywords ले लिए. Now we will add those keywords in our ad level here. Now we come down to the ad part. Now if you see a lot of things over here. ये होता है ad strength. मतलब आप जितने हेडलाइंस ऐड करोगे, आप जितने कीवर्ड्स ऐड करोगे, आप जितने
यूनिकैलिटी लाओगे, क्रिएटिविटी लाओगे अपने इस पर्टिकुलर एड में, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक स्कोर मिलता है। ये स्कोर 3 लेवल पे है। एक होता है बेसिकली बेस्ट या गुड, ओके, दैट मीन्स योर एड इज बिन रनिंग रियली फाइन, आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। देन वी से एवरेज। एवरेज इज बेसिकली देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू वांट टू ऐड, मतलब आपने हेडलाइन चेंज कर दो थोड़ा, आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में रिफ्रेशमेंट लाओ, आप थोड़े कीवर्ड्स में रिफ्रेशमेंट लाओ, तो दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ, और आई वुड से यू विल गेट अ स्कोर हियर। देन वी से पुअर, मतलब अभी हमने यहाँ देखा हुआ क्या है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एड लेवल पे हमें ऐड करने होते हैं 15 हेडलाइन। अगर हमने समझो कम ऐड किए हैं ना, हमने समझो 3 ऐड किए, थोड़ी कंजूसी कर ली, थोड़ी लेजीनेस लाई, तो हमने समझो सिर्फ 3 ही ऐड किए हुए या 4 ही ऐड किए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट हेल्पिंग द प्लेटफॉर्म। मतलब गूगल कुछ बेसिकली दिखाई नहीं पा रहा है कॉम्बिनेशन, वहां पे वो आपको क्या करेगा, आपको पुअर रैंकिंग दे देगा। दैट मीन्स इट इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि प्लीज थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करो, थोड़ा हेडलाइंस डालो, थोड़ी क्रिएटिविटी लाओ अपने एड में, बिकॉज ऐसे अगर आप क्रिएटिविटी लाओगे तो हमारे लिए भी इजी होगा आपके एड को कॉम्बिनेशन में दिखाना। Now, if I may say, the good part of the responsive, this is known as a responsive text ad, responsive search ad. The beauty of responsive search ad is that is something where you get multiple combination, मतलब समझो 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन है, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई 3 हेडलाइन रहेगा, कोई 2 डिस्क्रिप्शन रहेगा, कोई दूसरे 3 हेडलाइन रहेंगे, कोई दूसरे डिस्क्रिप्शन रहेंगे। So that is how your audience is seeing every time a new combination altogether. मतलब वो सेम एड देख ही नहीं रहा है। तो जब हम वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना कि एक ही एड हमने कितनी बार दिखा दिया है अपने ऑडियंस को, वो बिकॉज ऑफ दिस सर्च एड आपको कभी ये फ्रीक्वेंसी लेवल आएगा ही नहीं। बिकॉज क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग से, व्हेन आई से मशीन लर्निंग, दे आर ट्राइंग टू बेसिकली मेक मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंड शो योर एड to multiple ways to your audience. यहाँ पे आपने जब हेडलाइन की बात होती है तो इफ यू वांट यू कैन बेसिकली ऐड द कीवर्ड्स एज वेल। तो आपने सोच रहे हो कि ना भाई अभी मैं अलग से क्या करूं, मुझे अलग से अगर समझो क्रिएटिविटी नहीं लानी है मुझे, ठीक है, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन एनी अदर न्यू क्रिएटिविटी, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ना सिर्फ कीवर्ड्स ऐड कर देने, विच इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ओके, मे बी आप थोड़ा सा ना उसको सर्च करोगे, कीवर्ड प्लानर पे जाके देखोगे कि किसका सीपीसी हाई है या फिर किसके सर्चेस हाई है, ठीक है, आप वही कीवर्ड्स अपने हेडलाइंस में भी यूज कर लोगे। जैसे आप वो यूज करोगे तो ऑफ कोर्स जब भी कोई एज एन ऑडियंस सर्च करेगा आपकी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट या सर्विसेज, आपका एड पहले दिखेगा। दैट्स अ गुड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक व्हिच यू कैन डू। ओके, नाउ व्हेन आई से हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक है ना बेसिकली कैरेक्टर लिमिट होती है। तो इफ आई से इफ यू हैव 30 कैरेक्टर लिमिट, आप उसके बियॉन्ड गए तो ये चीज आपकी कभी कैंपिंग रन ही नहीं होगी। क्या होगा कि गूगल हमेशा आपको एरर देता रहेगा that you have to keep on working on your headline or you have to keep on working on your description. So you have to make sure that you have only 30 characters as a headline and you have your 90 characters as your description. Yes, आप उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। Now if I may say, अगर समझो आपके पास टीम नहीं है, okay, who is helping you with the creativity, yeah, if you are not very good with your copy, if you do not have that good copywriting skills, आप क्या करोगे, आप अपने URL को वहां ऐड करोगे and Google will try to help you with different types of description. वो क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म पे जाएगा, आई मीन लाइक आपके URL पे जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहां से थोड़े बहुत बेसिकली इंफॉर्मेशन लेगा and they will give you a certain description here. That means if you are not able to write something for your ad, Google is helping you to write that particular thing for you. Now, as I was mentioning, the site link is something which is another important thing which we need to add in our campaign. Site links can be in multiple ways. Either it can be a phone extension, it can be it can be your location extension, it can be a lead form generation extension. तो ये क्या करता है बेसिकली थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट,
तो आपको बस वही देनी है। मगर मैंने समझो मेरी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है एंड मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी वेबसाइट है इसकी कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक्स में ऑल्सो वी हैव मल्टीपल थिंग, वी हैव यू नो बेसिकली क्लेंजर हो गया, स्किन केयर हो गया, या फिर मैं बोलूँ मेकअप का सामान हो गया, इफ आई मैसेज आई हैव हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट, तो मैं उसके हिसाब से ना अलग अलग साइट लिंक दूंगी। तो इफ आई वांट कि ना मुझे चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर ऑडियंस अगर आता है एंड दे सी माय वेबसाइट, दे शुड ओनली गो ऑन दिस पर्टिकुलर यू नो साइट लिंक और एडिशनल लिंक ओनली, तब मैं उसको थोड़ा सा ऐड करके आई गिव आउट द इंफॉर्मेशन कि हाँ these are the important you know basically pages I want to highlight and they should go on this particular pages only. Then we come down to the phone extension. अगर आपके बिजनेस के लिए आपको चाहिए ना, you want to get lot of phone calls coming in, मतलब अगर आप समझो आप एनरोलमेंट में हो, you know if you are a educational institute and you want you know a phone number to be added so that people come and inquire about it, या फिर if you are a restaurant, okay, you want the bookings to be happen for your you know restaurant, reservations होने चाहिए, then you add a phone extension to your ad here. If you are a hospital, you know, if you are a wellness center and you want certain bookings to be done or an appointment to be taken for any of your doctors, तब आप ना वो फोन एक्सटेंशन डालोगे। So basically आप क्या कर रहे हो, आप एक ये नहीं कर रहे हो कि ना अपने ऑडियंस को कहीं घुमा नहीं रहे हो अपनी वेबसाइट पे, आपने सारी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दे दी है, ऑडियंस को क्या करना है बस उस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली अपनी क्वेरीज के लिए सॉल्व करना है। दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस कि आप किसी ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं उन पे, आप उनको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनको जरूरत है और वही इंफॉर्मेशन वो यूज करेंगे अपनी क्वेरी के लिए। Then I go and say done. Okay, once I have everything added as per my camping or as per the ad level, मैंने वो सारी चीजें ऐड कर दी, I go and say done and I go on next. अब क्या हो गया है budget. And now budget is something which is you know an individual's choice. आप चाहोगे तो भाई आप 100 रुपए से भी स्टार्ट करो, एंड अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई रिकमेंडेशन दे रहा है आप उस पर भी चार्ज कर सकते हो। I would suggest, you know, as a marketer, please set your own budget, you know, click on set a custom budget, because क्या होगा कि this is something where you have the whole control. मैंने अगर आपने करना है कि मुझे भाई सिर्फ $20 स्पेंड करना है तो मैं $20 ही स्पेंड करूंगी, उसके हिसाब से आई विल गेट माई रिजल्ट हियर कि मेरा वीकली कॉस्ट इतना होगा, मुझे इतने CPC पे मेरे क्लिक्स आएंगे और मुझे इतने क्लिक्स मिलेंगे। दैट इज वेयर यू गेट टू यू नो सी द रिजल्ट्स हियर। सिमिलरली इफ आई से मुझे सिर्फ $10 पे रन करना है तो आई विल स्पेंड ओनली अ सर्टेन अमाउंट फॉर $10 के हिसाब से आई विल गेट दैट रिजल्ट्स हियर। I go and say next. Now I have made my settings, I have uploaded a camping, I have added the keywords, I have made the changes to my site link, मैंने budget दे दिया है, मैंने bidding strategy दे दिया, सब कुछ दे दिया है मैंने। Next what? Now this is the final summary you get. Okay, यहाँ पे आपको अगर आप समझ रहे हो कि कुछ चीजें फिक्स करनी है तो गूगल आपको सामने से बोलेगा कि प्लीज अपने कीवर्ड्स जाके फिक्स करो, अपने एड्स जाके फिक्स करो, अपने यू नो बेसिकली बजट जाके फिक्स करो। अगर आपने कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज नहीं करी है तो प्लीज जाके उसको फिक्स करो। सो दैट इज वेयर इट इज हेल्पिंग यू नो टू डू अ समरी कि हाँ आपने ये सारी चीजें सेलेक्ट करी। आप बेसिकली एक फाइनल चेक होता है कि मैंने ये कैंपिंग शुरू करी है, ये मेरा फाइनल चेक है। ओके, नाउ आई विल बेसिकली यू नो डू आई एम गुड टू गो। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है विच इज पब्लिश कैंपिंग। once you solve all the issues, once you solve all the error which your you know basically summary is giving you, then you get an option over here to publish camping. once you click that thing, you're good to go. ये हो गया, आपने पब्लिश कैंपिंग कर दिया। नाउ इट विल गो अंडर रिव्यू। Okay, Google will review the camping, will review your creative, will review your text, will review your keywords, and if they find you know there are certain things जो उनकी policy के हिसाब से नहीं है, they will disapprove the ad. They will ask you to make changes and appeal it. When I say appeal it, that's where they are asking you कि भाई आपने changes कर लिए हैं, now you can re-appeal it and we will again check everything, you know, thoroughly check.
तो यहाँ पे कैसा होता है, कोई इंडिविजुअल आपके ना एक एक चीजें नहीं चेक कर रहे, यहाँ पे प्रॉपरली एक मशीन हर एक चीज चेक कर रही है। मतलब आपकी जो एड है, जो आपकी वेबसाइट है, वो हर चीज चेक हो रही है, एक एक माइन्यूट चीज है। मतलब अगर समझो उनको लग रहा है आपकी जो वेबसाइट पे कोई वर्ड है जिसके हिसाब से विच इज नॉट मीटिंग, या जो गूगल के पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, they will disapprove the ad there and there. They won't, and just to give a heads up, अगर if you still don't make changes, अगर उन्होंने जो जो अपील कर रहे हैं आपने चेंजेस नहीं किए and you still going on re-appealing it कि नहीं मैंने चेंजेस कर दिए, they will also suspend your account, okay? और फिर आप सेम बिजनेस के लिए या सेम प्रोडक्ट के लिए जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, आप फिर कभी अकाउंट नहीं बना पाओगे। गूगल इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दिस पॉलिसी। मतलब एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, मतलब हुआ, there is no way you can create the account. So, and if you see, you get a score here, okay? Once you have designed a campaign, you get a score ki ha, my campaign is good to go, okay? Now if I want to अगर कुछ errors है या कुछ है, if I want to do on those changes, I can do that. So this is what the platform look like. This is how we create a campaign. You can create similar type of campaign on a display level, on a video level, and even on, if you want to have other types of campaign. अभी जैसे मैंने आपको डिस्कवरी दिखाया है, मैंने परफॉर्मेंस है, तो आपको अगर वैसे भी कैंपिंग अगर क्रिएट करने आप कर सकते हो। सी परफॉर्मेंस डिस्कवरी इज समथिंग विच most of the clients are still hesitating it, because एक तरह से वो conversion आ जाता है, थोड़ा expensive हो जाता है। Search and display is still fine, people still basically want to go ahead with that type of campaign, but when it comes to performance max and discovery, it becomes a little expensive. So पहले आप basic campaign से start करो, which is search and display or a video campaign, and then when you have master it कि हाँ now I know what exactly the search is, कैसे site link add होते हैं, कैसे optimization होते हैं, then you can go for another level which is performance max or a discovery campaign. So this is how the platform looks like, okay? This is how we basically start a particular campaign. If let me just Ma'am, share the link. Ma'am, please share the link. Yes, I will do that. Just give me a second. Okay, I have shared the link in this chat box. Please take it right away, because जैसे कॉल बंद होगी तो फिर आपका लिंक भी चला जाएगा. Yes, ma'am. Yesterday कल यही हुआ था, ma'am. Actually. No problem. So it's showing sign into your Google Ads Manager account. So shall I sign in here and start doing? You can start doing that. Yes. So if you have an account, you can start doing that. Okay. And if you haven't created an account, you can, basically go as a new user as well. It gives you, it gives you an option to basically, sign in as a new user, and you can create an account over there. Google Store पे account कैसे बनाते? Yeah. Sorry, come again. Google Store पे account कैसे बनाते? Google के मैप में आने के लिए. Google Store का वो आपका ऑटोमेटिकली ऐप के लिए ना, वो आपको ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो, okay, if you want to have a Google Store account, you can just go on this particular website. I'll just help you. I mean, it's showing your business name. So shall I write Khatri Fragrance and Flavors? Yes. Or just Khatri is all right. However you want your name to be. Okay. So let me show you. Yes. So आपको Google Play पे जाना है, विकास. Just give me a second. Ma'am, it's showing ki where should people go after clicking your ad, your website. So I don't have my website yet. I have to make it, ma'am. So you'll have to create a website, ma'am. इसके बाद ही फिर आप है ना उस पे ये कर पाओगे. Okay. But it's nice. हाँ. विकास मैंने आपको Google Play Store की लिंक दी हुई है. Okay. ठीक है. That's where you can have your account as well.
यहाँ पे कैसे होता है कि यू नो ऑन अ डिफरेंट लेवल आप अपने हिसाब से अकाउंट ये कर सकते हो, मतलब क्या कस्टमाइज कर सकते हो. Okay. Yesterday I had mentioned that I have to, you know, basically share few AI tools with you all. So give me a second. I'll just quickly do that for you all. Okay. I'm just sharing a list as well. Ma'am, it's showing something Google Store Credit. Set up your Google Store Credit as well. Yes. So if आपके पास अगर तो आप न्यू यूजर हो, ठीक है, Yeah. तो आपको एक क्रेडिट मिलता है गूगल की तरफ से मैम. ओके, ऑफ अ सर्टेन अमाउंट. तो आप वो जैसे यूज करोगे ना, तो यू कैन बेसिकली यू नो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बट उसके लिए अगर आपको मैम अपना क्रेडिट कार्ड या पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू क्रेडिट यू. तो आप पहले वो मत करो, पहले आप है ना प्लेटफॉर्म को अच्छे से देख लो, जी. ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट. Right, right. More knowledgeable. Yes. So if I may just quickly share. मैम अगर लिंक मींस क्लास के बाद ये लिंक टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर इसको वैसे वापस कैसे सर्च करेंगे हम? आप कहीं पे इसको मैम सेव कर लो ना, इसको आप अपने पास सेव कर लो या बुकमार्क कर दो अपने ब्राउजर पे, तो कभी भी फिर आपको ये लिंक जाएगी नहीं. Just give me a second. So this is for everyone. Okay, these are the few tools which I was actually browsing Instagram yesterday and I got some. This will help you for your new camping design. तो अगर समझो आपके पास you know team nahi hai, you know, to help you with your creative work, this is a particular list of tools which will help you in designing any camping. So this is for everyone. Please visit this page, Instagram page. Okay, you see there are 35 tools, you know, which will help you in your camping creation. Be it your you know video, be it your image, be it your text, any kind of a thing. Even if you are creating a content, okay, even if you are creating a content, these tools will help you to create content as well. We're showing LX marketing, LXX marketing. Yes. So this is the piece which I follow. You know, they keep on adding new tools every time. Okay, which will help you to create your content on a different platform. Means we upgrade, yeah. Yes. So अगर आपने animation you know basically create करना है, you want to have a bot, okay, you want to have an animated chat videos, Right. so you can use chatanimator.com. Then if you want, you know, tons of designs, okay, for free, okay, if you don't have a graphic design team or if you are not so good with any design activity, that's where you have freedesignresource.net. So ऐसे आपके पास बहुत सारे tools हैं, ठीक है, which will help you to, you know, basically create content. Okay, these are automatic 35 tools. Okay, and if somebody wants to learn, okay, if you want to read as well, so there is something called as freebookspot.club. So ये आपको कोई भी book, you know, if you want to read it for free, especially online, you can do that. Okay, and if you want, you know, कि आपको कुछ creative headlines चाहिए या creative descriptions चाहिए, so there are a lot more tools like, you know, subjectline.com, which will give you best of the headlines which you can use in your camping. So these are the ones tools. Quiltboard is something which will help you in your writing. So someday if you are, you know, you want some kind of a you've written something, okay, and आपको थोड़े बहुत है ना rephrase करने हैं, okay, you might have written in a very simple language, but now if you want, you know, your user to read in a very fluency level या standard level पे, you can basically go and select that option and आपकी simple sentence को ये particular tool थोड़ा rephrase कर देगा. That means user को भी पढ़ने में अच्छा लगे and even you will feel very good when you're writing it. मैम आई वांट टू अबाउट लाइक दिस चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है, सब लोग बहुत चैट जीपीटी का बात करते हैं जी. फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या वेडिंग शूट में भी कुछ हेल्पफुल है या नो, जस्ट फॉर राइटिंग और नो मैम, तो ये आपको हर चीज में हेल्पफुल है, बट आपको एक कॉम्बिनेशन लेना होता है. तो आपने समझो जैसे यू नो कोई दो टूल को मिक्स करके ना, चैट जीपीटी इज जस्ट वन टूल, बट उसके अलावा द
the list which I have shared, which helps you in video, which helps you in photography as well. जो अभी आपने इंस्टाग्राम वाला शेयर किया है वो ना? जी, तो उसमें आप देखो कि बहुत सारे टूल्स की लिस्ट है, Okay, which all will right. help you as per your basically requirement. Thank you very much. Yes. Okay. Let me. So I would really appreciate, this is one more request I'm making कि आप लोग अपने ना basically एक account create करिए, ठीक है? और एक जब आप क्रिएट करोगे, आप खुद ही कैंपेन का जब क्रिएट करोगे ना, आपको खुद को मजा आने लगेगा. ओ दिस इज हाउ इट हैज बीन डन. ये पर्टिकुलर ये वेबसाइट इज हेल्पिंग यू इन दिस वे. आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने में भी मजा आएगा. मगर आप जब कीवर्ड प्लानर पे जाते हो, आप जब कीवर्ड सर्च करते हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको मजा आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कीवर्ड इज रेलेवेंट फॉर माय बिजनेस, इट इज इररेलेवेंट फॉर माय बिजनेस. यूज दिस टूल्स टू ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी इन यू. आई एम श्योर आपके पास फ्रेंड्स होंगे हु आर वेरी गुड विद ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर आर्टिस्टिक वर्क, बट व्हाट इफ इवन यू आर गुड विद इट. So try to get those creativity out of your self as well, and try using this platform so that you can also be very sure ki हाँ I have my idea very clear. This is what my visualization is all about, and this is how my ads will look like. So it gives you also, a sense of sigh of relief as well. Ki ha, this is something which I'll be using it, and this is how I'll be running it. Then when we meet next time, okay, next time we are, gonna go more about the online marketing. Today we have almost gone through the paid search marketing, and I have showed you display camping as well. If we still have time, we still have some time, तो मैं एक और कैंपिंग बनाती हूँ आप लोगों के साथ. मैं एक बनाती हूँ डिस्प्ले कैंपिंग, the one which is the other camping. Let me quickly share my screen. Again, objective is going to be the same. जब भी आप नया कैंपिंग बनाने लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव देखने हैं. Now I'll go for a website traffic, ठीक है. I will go for a display campaign. मैम आपने डिस्कवरी ऑप्शन यूज किया था, उसको कहाँ से सर्च करें? आपने बताया था कि बहुत सारे कैंपेन से डिस्कवरी से भी रन कर सकते हैं. जी, तो आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अब जैसे चूज करोगे मैम, आपको वैसे यहाँ पे ना कैंपिंग टाइप मिलेगा. तो अगर मैंने बोला जी, अगर मैंने समझो किया कि क्रिएट कैंपिंग विदाउट एनी गाइडेंस, तो यहाँ मुझे आप देख रहे हो एक ऑप्शन मेरा बढ़ गया, विच इज अ स्मार्ट कैंपिंग. मतलब एज अ मार्केटर, इफ यू आर अनश्योर कि मुझे बेसिकली ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ बेसिकली मैं देख रही हूँ, so you can basically go with a campaign, I would say a goal without any guidance. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मे से अगर मैंने लीड दिखा, तो लीड में देख रहे हो आप कि मेरा एक ऑप्शन कम हो गया. यहाँ पे डिस्कवरी एड आप देख रहे हो, पर यहाँ पे आपको आई गेस कोई एक ऑप्शन नहीं है, स्मार्ट कैंपिंग नहीं है. ठीक है, तो आपने स्मार्ट कैंपिंग नहीं रन कर सकते. जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करोगे मैम, वैसे वैसे आपको बेसिकली यहाँ पे कैंपिंग टाइम मिलते जाएंगे. So if I just quickly take sales, sales is like search, performance, display, shopping, video, and discovery. Then if I click on leads, same options. If I click on website traffic, same options. Okay? If I click on product and brand consideration, that's where I'll get only one option, which is a video here. That means अगर आप देखोगे ना मुझे सर्च मिल रहा है, ना मुझे डिस्प्ले मिल रहा है, ना स्मार्ट है, ना शॉपिंग है, that means मैं सिर्फ एक ही कैंपिंग टाइप रन कर सकती हूँ, which is a video camping type. Similarly, if I go for branding and awareness, I can do only two camping type, which is display and video. Then if I go on another camping goal, which is app promotion, that means an app camping type I can go ahead with. No other camping level. That means I cannot go for search, no display, no smart, no shopping, no video, only app level. Then if I may, just go for local store visit. अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलता है परफॉर्मेंस मैक्स. दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट जो कन्वर्जन वाला जो हिसाब होता है, दैट मीन्स यू वांट टू ड्राइव people to your store, that's where you will go for a performance max as a camping type.
Now if you see, Performance Max has replaced local camping. यहाँ मतलब जब हम लोकल स्टोर विजिट कैंपिंग जब पहले करते थे, we used to get a local camping as an option. ठीक है, so this is something which has been replaced by Performance Max now. मतलब Performance Max has taken the place of a local camping here. So Performance Max क्या करेगा? It will optimize the particular camping with different benefit. मतलब आपकी स्टोर विजिट भी हो रही है, क्लिक्स भी आ रही है, कॉल क्लिक्स आ रही है, डायरेक्शंस देखे जा रहे हैं. दैट मीन जो भी ऑफलाइन गोल्स होते हैं, ऑफलाइन गोल्स एज इन फोन कॉल इज एन ऑफलाइन गोल. ठीक है, आपकी स्टोर विजिट इज एन ऑफलाइन गोल. मतलब अगर कोई आपके स्टोर पे आता है, विजिट करता है, तो इट्स एन ऑफलाइन गोल, राइट. मतलब ये चीज ऑनलाइन नहीं हो रही है. आपने कोई मैप, अगर आप डायरेक्शन के लिए मैप डाल रहे हो, तो समझो अगर मैं अंधेरी में रह रही हूँ एंड द शॉप इज इन बांद्रा, तो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन थिंग इज हेल्पिंग मी टू रीच दैट स्टोर. दैट इज एन ऑफलाइन वे. So I am going from one place to the other with the help of the direction which has been shared on their camping here. Similarly, आप नाम यहाँ select करते हो कि आपने नाम बड़े easy रखने हैं. As I mentioned, make sure to have a very easy name so that you can always be whenever you check the analytics, okay, कि मुझे कौन से camping से क्या results आ रहे हैं. If you feel like there are certain camping is not giving you the desired result, तो मुझे कौन से camping पे results नहीं मिल रहे हैं and everything, तब आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि यार ये इतने बड़े नाम हो गए, आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाओ. तो मेक श्योर टू हैव वेरी सिंपल नेम so that you can basically track each and everything on your analytics platform. So I'll go quickly and take website traffic. I'll create one display camping. आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालनी है. So whenever you need to have a camping running, so either it can, so not necessary it has to be a website page, okay. You can also have your Facebook ka page as well, or if you have any other basically social media page where you want to drive traffic, you can add that URL as well. Then you want to have a conversion tracking. Now conversion tracking only can be done on a website. You cannot do it on your Facebook page, not on your social media page, not on any other social media page. This can only be done on a website. इसीलिए प्लेटफॉर्म हमेशा यही आपसे पूछता है कि आपके पास वेबसाइट है या नहीं, बिकॉज उसके लिए भी इजी होता है चीजें लर्न करना आपके वेबसाइट से. और आपको कोई एक्शनेबल आइटम्स बतानी हो तो वो आपको दे सकता है. ठीक है, once I have that, just give me a second. Yes. So मैंने जैसे आपको कहा है कि आपने अपना नाम सिंपल रखना है. Okay, start new. This is again on the same way, the way we have created a search campaign. ठीक है, आपने अपनी लोकेशन डालनी है, अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, आपकी टारगेटिंग चूज करनी है, आपको अपना देखना है कि कौन से एड्स को बेस्ट रखना है, या फिर you want to run the ads on an evenly level. हाँ, the good part is over here is ad schedule. So when I say ad schedule is something, if you want to run only on Monday to Friday, the ads will run only on Monday to Friday. Because if you feel that you do not work on Saturday, Sunday, तो आपको सैटरडे संडे एड रन करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स वीकेंड में नहीं अगर करना है तो नहीं हो सकेगा. आई एम सॉरी, कम अगेन. यस मैम, वीकेंड में अगर नहीं चाहिए तो नहीं हो सकेगा. नहीं करना है. अगर आपको इवन फॉर द लैंग्वेज, सिलेक्टिव लैंग्वेजेस के लिए आपने जो एक्सप्लेन किया था कि हिंदी एंड मराठी, हाँ, तो वो भी सिलेक्टिव लैंग्वेजेस के लिए कर सकते हैं. नहीं, आप अपनी सारी लैंग्वेजेस के लिए कर सकते हो. अगर आपकी कंटेंट चाइनीज या मैंडरिन में है तो आप वो भी ले सकते हो. या मैं फिर एक चीज पूछनी है, मान लीजिए जैसे यूट्यूब पे किसी ने अपना चैनल बनाया है और उसको हमें लाइक एक्सपेंड या ऑप्टिमाइज करना है, तो हाउ दिस विल बी हेल्पफुल. तो आप मैम वीडियो कैंपिंग रन करते हो तभी. ओके, आप वीडियो कैंपिंग रन करते हो सो दैट यू कैन गेट बेसिकली पीपल टू वॉच योर वीडियो. ओके, तो वीडियो कैंपेन बस ऐसे ही इसी में जाके ऑप्शन, जैसे अभी आप डिस्प्ले बनाते हो, जैसे आप सर्च करते हो और आप जैसे अपने गोल सेलेक्ट करते हो, आपको मिल जाता है कौन सा कैंपिंग टाइप आपको चूज करना है. ओके, ठीक है. सो मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, आप यहाँ पे डिवाइसेस कौन से चूज करते हो.
ठीक है, if you want to show on mobile, if you want to show on computer, if you want to show on tablet, you can select the device accordingly. Then if you want, you know, what is the start date should be, सभी समझो मैंने सिर्फ कैंपिंग सेटअप करके रखना है, मैंने अभी लाइव नहीं लेना है। तो आप क्या करोगे, आपने सोचना है आपने मंडे लाइव लेना है, तो मैंने आज कैंपिंग सेटअप कर दिया है, मैंने कल की डेट डाल दी कि कल लाइव हो जाना चाहिए कैंपिंग। तो अगर समझो it has to be reviewed, it has to be done something, it will be done by that time and your campaign will go live on Monday. ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सक्लूड सर्टेन कंटेंट, अगर मैं समझो मुझे एड्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है, कोई कोई कंटेंट पे मुझे अपने एड्स नहीं दिखाने, तो आप उस यू नो बेसिकली अगेन, सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्ले इज मोर ऑफ एन इमेज एंड यू नो बेसिकली क्रिएटिव्स एंड एवरीथिंग। तो वो क्या हो रहा है कि ना आपकी कोई भी वेबसाइट पे चली जाती है, तो कोई भी एप्स पे चली जाती है, तो आप चाह रहे हो ना कि मुझे ना कुछ वेबसाइट पे अपनी एड्स नहीं दिखाने बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड, तो आप यहाँ आके ना बेसिकली क्लिक कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम इट, ओके, ऑफ शोइंग योर एड्स ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। सो इफ योर ब्रांड इज समथिंग यू नो it is not fitting on any of the content type here, so you can basically opt out from here. Then we go next. बजट आपने रखना है यहाँ पे कि आपने कितना स्पेंड करना है ऑन एन एवरीडे लेवल, आपने 100 रुपीज करना है, 200 रुपीज करना है, 500 रुपीज करना है, दैट इज ऑल ऑन अ मार्केटियर और द बिजनेस पर्सन कि भाई मेरा रोज का बजट यही है, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं होना चाहिए। देन मेरा बेसिकली बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, now when I have selected website traffic, that means I am looking for a high quality traffic thing over here, so मैंने यहाँ फोकस क्या होगा, मेरे भाई मुझे यहाँ हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए। अब डिस्प्ले है तो भाई इंप्रेशंस भी लगेंगे, तो यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज, वन इज द हाई क्वालिटी ट्रैफिक you know which will lead to an action to your website or an app, or either if I just want you know people to watch my ad, that is you know where a user sees 50% of your ad for more than 1 second, okay, whichever is higher, either for a 50% or which you know only for a 1 second, so that is something which is a variable impression we go ahead with. यहाँ पे हम बिड सेट कर सकते हैं कि ना मैन्युअली सेट द अमाउंट यू वांट टू बिड फॉर ईच क्लिक, सो either you want you know people to you know if you have a certain limit कि मुझे 1 रुपए में 1 क्लिक आनी चाहिए या मुझे 50 पैसे में 1 क्लिक आनी चाहिए, मुझे 10 पैसे में 1 क्लिक आनी चाहिए, दिस इज टोटली ऑन यू, ओके, दिस इज टोटली ऑन यू। फिर आप अपने हिसाब से इधर मैन्युअली सेट कर दो बिड, इफ नॉट, if your objective is you know that you don't care about the CPC at all, आपको भाई सिर्फ ट्रैफिक लाने हैं, तो मतलब 100 रुपए में जितनी ट्रैफिक आएगी जो भी बिड लिमिट पे आएगी आप लेने को तैयार हो, तो यू कैन ओनली गो फॉर ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज ट्रैफिक हियर। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक एस्टिमेट दिखाया जा रहा है कि ये इतना बेसिकली इंप्रेशंस है, इतनी आपका बजट है, ये आपका यू नो बेसिकली इट इज गिविंग यू अ स्मॉल फोरकास्ट, ठीक है, इट्स प्योरली एन एस्टिमेशन, दिस इज नॉट अ शॉर्ट नंबर, ठीक है। अगर यहाँ 10 बिलियन दिखा हुआ था, नॉट नेसेसरी आपको 10 बिलियन इंप्रेशंस आएंगे, आपको इससे कम भी आ सकते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एस्टिमेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन you know something which we only just give a number here, approximate number here. We go next. Now optimize targeting for you. Now as we have done it in our search campaign as well, तो बेसिकली मेरे ऑडियंस किसको किसको दिखाने हैं, कौन से लेवल पे दिखाने हैं, क्या कीवर्ड पे दिखाने हैं, कौन से टॉपिक्स पे दिखाने हैं, दैट आई विल चूज हियर। तो व्हेन आई से ऑडियंस सेगमेंट, सी हु वुड सी योर एड, सो if my ad is for you know it's a restaurant, तो मेरे को किसको किसको दिखाना है, someone who is you know food enthusiast है, so if I'll just click on food, okay, so food and dining, frequently eat diners out, मतलब who always prefer eating out, you know someone who is frequently has lunch out या breakfast out, so they are the one who are going to be my audience here। so अगर मैंने restaurant हूँ and I want to you know basically target people who eat out frequently, you know who like to try out new things every time or new places every time, वो मेरे audience होंगे यहाँ पे। then I just do this, okay, now let me again go on the second level,
Now demographic here. Now when I have a restaurant, I can target anyone here. Female, male. If I want, अगर समझो मेरा salon and spa है, and it is purely for women. Okay, I only offer women services. So that's where I will only choose female as my audience here. ठीक है? My age groups here. Now I have different age groups to be targeted. Now अब मेरी services है different age groups के हिसाब से. So if I may talk about skin tightening, so skin tightening with the services is for the females who are about 35. Okay. Then if I want, only for a normal facial. The normal facial is the services for the females between the 18 to approximate all the ages go for facials here. If I have, laser treatment. Laser treatment is for the females who are, for between the age of 35 to 54. तो मैं ऐसे अपनी basically audience यहाँ पे select करूंगी. Parent status, non-parental status, something which is not necessary, वो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए. Now we come down to the income part. जब आप income देखते हो तो when we talk about top 10%, that means this is your high net income group. जैसे हमारे यहाँ होता है, we have high class, then we have high middle class, then we have middle class, then we have the poverty group. We have different levels like this. तो ये आपका income level उसके हिसाब से bifurcate हुआ है. ठीक है. So आपकी जो भी services रहेगी आपको जिसको basically, so if I may talk about the laser treatment. Laser treatment are for the females, who would like to really spend on their skin. That means they fall under the income group, of between 10 to 30%. मतलब यहाँ पे working females भी हो सकती हैं या फिर the females who have a luxurious life. So if I may talk about Neeta Ambani, she has a luxurious life. Okay, she has a very leisure life. So she falls under this particular category, which is top 10%. Lower 15% is again, you don't want to target those females, probably who are also, struggling with their day-to-day activities. I'm sure you won't want to show them your ads. Okay. I'm sure when they have their, income level stable, that time they might, go for the other activities. But उनको जो उनकी day-to-day activities के हिसाब से ही हम अपने income level भी यहाँ पे choose करेंगे. Okay. The moment I've selected my audience here, then we go for the other targeting options. Then if you want, there are certain topics where you want to show your ad. When I say certain topics, what topics we can choose for is like, if when it comes to salon and spa, it can be shown on beauty and fitness. It can be shown on arts and entertainment. Of course, auto and vehicles is something which is not important for me because यहाँ पे जो auto and vehicles होंगे, यहाँ पे maximum audience male होंगी. Okay, so if I may take a ratio, you might get 70% male audience and 30% female audience who would be likely to be interested in auto and vehicles. But जो भी वो 30% होंगी, I'm sure they are not interested in the salon and spa का ad on that particular website. They would look for the ad, which are related to that particular website or particular content here. Similarly, when it comes to arts and entertainment, if you are a very big, Bollywood fan or a Hollywood fan, you like, how the celebrity dress themselves or, you like the lifestyle of them. That's where, you would like to see the different salon ads on that particular website if you're consuming content on this particular topics. And beauty, yes. I want to ask, like in beauty and fitness, like in facials, rose water can be added. Like, so suppose अगर हमें अपना website बनाना होगा तो beauty and fitness में जा सकते हैं, no? मैम ये targeting है. So आप अगर देख रहे हो ये difference है. आप जब ad बनाते हो ना, आपको कौन से audience को target करनी है वो इस particular category में fall करती है. Then business and industrial. जी. Yeah. Okay. But this is nothing to do with your website, मैम. आप अपनी website अपने हिसाब से डिजाइन करोगे. आप अपने प्रोडक्ट के ऑफरिंग्स के हिसाब से डिजाइन करोगे. ठीक है. और जब आप एड डिजाइन करते हो ना, जो डिस्प्ले, जो क्रिएटिव बनाओगे या जो आप इमेज एड बनाओगे या वीडियो एड बनाओगे, वो आप कैसे बनाओगे वो आप अपने हिसाब से बनाओगे. बट जब आपको टारगेटिंग करनी है, मतलब अगर आपको समझो फीमेल्स को टारगेट करना है तो कौन सी कैटेगरीज में आपको फीमेल्स ज्यादा मिलेंगे, यानी रेशियो के कौन से कैटेगरी में ज्यादा होगा. So arts and entertainment, you'll get a little bit of higher ratio here. Because females are more into arts and entertainment. Please don't get me wrong. I'm not being not giving basically a differentiation here, but this is how it is. As a female, you always like to know कि basically Kriti Sanon ने क्या पहना था इस particular award function पे, या फिर if I may say there's a award function which has gone. अभी अगर मैं बोलूँ ये जो
नेमैक हुआ था, which was नीता अंबानी का जो Yeah. कल्चर वाला फेस्टिवल. So you will actually see, you know, how many festival, what they have wore, you know, celebrities ने क्या पहना था, क्या डिस्प्ले हुआ है. So we as a women we are more interested, उन्होंने कौन सी शेड की लिपस्टिक यूज करी है. So that is how it is. So we are like, you know, more interested in all of these topics here. Right, right. So that is how I will go and select the category कि मेरा ad वहां पे दिखाऊंगी. That means मेरी audience वहां ज्यादा है and they will basically click on my ad here. तो मैम आप अपनी वेबसाइट आप अपने हिसाब से डिजाइन करो, ठीक है. आप अपना कंटेंट अपने हिसाब से लिखो. आप अपने हिसाब से ना बेसिकली जब एड रन करोगे ना तब आपको कैटेगरी देखनी कि यहाँ से मेरी ऑडियंस आने वाली है. Thank you very much. You're welcome, ma'am. I won't take a lot of time. I know I am late. ठीक है, बस मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे दो तरीके के डिस्प्ले एड्स होते हैं. As a marketer, आप still normal display ads ही जाओ अभी फिलहाल के लिए. You know, you just want to upload the creatives here. यहाँ पे आप अपने URL डालो, ठीक है, कहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है अपने ट्रैफिक को. यहाँ पे आप अपने एड्स अपलोड करो and then you say next. And you say finish. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है publish camping का. The moment you click on that publish camping, the camping will again go under review. Google will check each and every creative. उस पे सारे words आपकी वेबसाइट thoroughly check करेंगे. And if they find anything suspicious, मतलब अगर उनको लगा कि कुछ चीजें हैं जो मैच नहीं हो रही है, जो आपका क्रिएटिव बोल रहा है या फिर जो आपकी वेबसाइट बोल रही है, and if they are not matching, मतलब कहावत वापस वही बोलेंगे, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें. अगर ये वाली चीज वापस हो रही है तो क्या करेगा गूगल, इस चीज को डिसअप्रूव कर देगा. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो क्रिएटिव पे लिख रहे हो वही चीज आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए या फिर आपकी वेबसाइट जो है वही आपकी क्रिएटिव में भी दिखना चाहिए. ओके, सो हियर वी कम टू एन एंड टू अ पेड सर्च मार्केटिंग. Thank you very much, ma'am, for the session. It was really very informative. And Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Manoj sir, you have a query for me. मैम ब्लॉगिंग के लिए जो है एआई टूल्स का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है क्या, और ब्लॉगिंग का जो है मतलब अभी भी क्रेज बना हुआ है क्या, क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब वीडियोस की मतलब धूम मची हुई है, तो क्या लोग सच में आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? सर मैं खुद आर्टिकल्स लिखती हूँ. Ma'am, please share your articles. Please नहीं share. सर, I would really love to. मैं खुद सर है ना, मैं एंटरटेनमेंट का मेरी खुद की एक वेबसाइट है, तो I keep Okay. on updating that and I'm telling you people still read articles. Okay. तो मैम Yes, उसमें even I do. एआई Yeah. टूल का वगैरह कुछ इस्तेमाल हो सकता है ब्लॉगिंग के Of लिए course, वगैरह? of course सर. अभी मैंने आपको जो लिस्ट दी है ना उसमें सर इसमें एक टूल है which is Quillbot. तो अगर आपकी बहुत सिंपल है लैंग्वेज, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गेट अ लिटिल मोर फ्लुएंसी, मतलब आप अपने ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हो अपनी लैंग्वेज का, दैट टूल विल हेल्प यू टू एनहांस योर स्टैंडर्ड, एनहांस योर लैंग्वेज एज वेल. अगर मैम आप चाह मतलब रहे हो. समझिए, मैम हाँ, अगर मतलब जैसे हमें भी सॉरी सर, या प्लीज गो अहेड. Please. Go ahead. ओके अच्छा. मैम, अगर हम एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ओके, जी. एंड ग्रामरली पे भी अगर चेक करते हैं और ठीक ठाक आर्टिकल वो है, तो उसको जो है फिर से हमें क्विलबोर्ड पे जो है पेस्ट करके उसका स्टैंडर्ड मतलब बढ़ा सकते हैं क्या? आप बढ़ा सकते हो, आप या बढ़ा फिर सकते हमने चैट जीपीटी पे मतलब एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है मतलब वॉइस के थ्रू मतलब अगर बनाया है, उसको कॉपी करके हम क्विलबोर्ड में डाल के फिर से उसको हो. इनहेंस आप उसका अगर स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो. आपने वॉइस के थ्रू कैसे बनाया उस पे? नहीं, मतलब मैम टाइप करते हैं ना तो वो अपने आप जो मतलब टाइप होता हाँ. है, You can तो do उसको sir, you can do मैम. अगर आप ना डिक्टेट करते हो प्लेटफॉर्म को कि जी. दिस इज व्हाट आई वांट टू यू नो बेसिकली कन्वे इट, प्लेटफॉर्म Okay. आपके लिए लिखता भी है. मैम हमें पूछना था जैसे परफ्यूमरी पे कुछ मतलब प्रीमियम क्लास फ्रेग्रेंसेस पे लिखना है आर्टिकल, तो भी चैट जीपीटी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा? चैट जीपीटी हेल्प करेगा. जो मैंने आपको टूल्स दी है वो आपको हेल्प करेगा. वो कैसे करेंगे मैम जो आपने अभी टूल्स दिए हैं वो तो मैंने कैसे? आपको बताया ना मैम, अभी जो क्विल्ट बोर्ड करके है एक टूल, उसमें आपने Okay. बड़े सिंपल तरीके से लिखा कि आपकी फ्रेग्रेंस में ना आपके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, या आपको उसको थोड़ा एनहांस करना है. आई एम श्योर इफ यू वांट टू टारगेट ऑडियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा, तो आई एम श्योर उनका ऑब्वियसली लैंग्वेज जो होगा वो जैसे इतना वैसे लाइक एरोमा थेरेपी में नेरोली ऑयल, पचौली ऑयल, ये सब यूज होते, ऑरेंज ऑयल हाँ, या लाइक तो उसको थोड़ा एनहांस कर देगा, वो उसको थोड़ा सा एनहांस कर देगा. आप एक ना एक लैंग्वेज लिख के देखो, एक सिंपल सा सेंटेंस है ना वो क्विल्ट बॉट पे लिख के देखो एंड तो सी, मैं- आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा. तो मैम क्विल्टबोर्ड उसी में से जाके सर्च करना जो आपने भी लिंक शेयर किया हाँ जी, मैंने उसी में आपको वो टूल्स में है. हाँ, थैंक यू वेरी तो मैम मच. एकेडमिक्स में भी क्विलबोर्ड का इस्तेमाल और उसी हो तरीके के सकता और है सर.
मैम इसके अलावा क्विलबेट के अलावा और कुछ मतलब आपके ध्यान में है सॉफ्टवेयर या I will say, sir, ये भी फिलहाल कैसा था, this is the tools we all are using it for as a marketer. But there are lot many tools, sir. मैं आपको है ना, अगर if you all are coming in the next week as well, मैं आपको लेना और लिस्ट है ना रेडी रखती हूँ. These are only 35 tools. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. may I have your contact numbers if I want to know something more so I can मैम call. आपका लिंक आप इंस्टाग्राम पे है या हाउ कैन आई फॉलो यू लाइक you are into writing and all that, so please share your either website or whatever work you do, ma'am. So, please. ma'am, मैं entertainment में हूँ. If I may just share my website with you all. Yes, please. So ये है जो basically website है where I publish content. Okay, this is more of an entertainment website and we use different tools. Okay, because क्या होता है कि because of our work, I actually work as per United का shift. Okay, my working hours is from afternoon 3:30 till night 1:30 a.m. तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं ना उसको ज्यादा फोकस कर सकूं. So I use all these tools, to get me the creative part, to help me enhancing writing. और अगर मुझे एड्स के लिए भी अगर कॉपी लगती है तो मैं ये सारे टूल्स ही यूज करती हूँ. Entertainment Scoop, ma'am, is that you, no? Entertainment Scoop. जी जी जी. Right, nice, very nice. Ma'am, I have a doubt. यस यस सलमा. मैम आपने जो कहा था अगर गूगल हमारा एड डिसअप्रूव करेगा तो हम वापस एडिट कर सकते हैं या और शुड वी डू अगेन अ न्यू एड? No, you can edit your ad and you can re-appeal it. तो आपको वहाँ पे दो है ना बेसिकली ऑप्शन मिलता है. Either you can re-appeal it or either you can dispute the decisions there. तो आपने चेंजेस कर दिए समझो अपनी वेबसाइट पे या अपने एड्स पे, you can go and re-appeal it that you have made the changes to the all the ads on your Google platform. Ma'am, If not, ओके. all and this if you writing work you file have done. कि आपने you feel like Google is something they are not sure कि ना मैंने अपने ad सही रखे, you can dispute the decision as well. तो कि that you are very sure कि नहीं मेरे ad सही है, Google is simply disapproving it, तो आप उस decision को dispute भी कर सकते हो. तो I would suggest make changes, थोड़े बहुत changes कर दो और re-appeal कर दो. ठीक है? Don't have to. ओके मैम. मैम Yes sir. मैम एकेडमिक्स में रिसर्च राइटिंग में फ्रीलांसिंग में जो है जो प्रोफाइल्स वगैरह लगती है जैसे लिंक्डइन हो, फ्रीलांसर हो, अपवर्क हो, तो इसमें जो है प्रोफाइल किस तरीके से हम मतलब अपडेट बना सकते हैं और उसके बाद में हमें क्या स्कोप रहता है उसके बारे में कुछ शब्द बताएंगे आप? Yes sir. So when it comes to basically freelancing or if you want कि आपको आप देख रहे हो ऐसी कुछ चीजें, so there are not only Fiverr or Upwork, there is another website which is known as Remotely, फिर Nomad करके है, Nomad Digital. तो यहाँ पे क्या होता है कि एज अ फ्रीलांसर आप साइन अप कर सकते हो if you have a knowledge about a certain topic. So if I may say I have a knowledge about paid search, so I will give out those things on my platform. But I would suggest rather than going on a freelancing thing, sir, you can create a video or create a content for your own self. ओके, जैसे आपने वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया या फिर देयर आर लॉट मेयर वेयर यू कैन पब्लिश योर ओन कंटेंट. ठीक है, एंड आप क्या करोगे, कंटेंट पब्लिश करोगे, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द ट्रैफिक एज वेल. थोड़ा बहुत पेड ट्रैफिक के लिए एड्स रन करना शुरू करिए सो दैट पीपल विल नो अबाउट योर पर्टिकुलर बेसिकली कंटेंट एंड दे विल कम ऑन योर वेबसाइट. एंड इफ दे फाइंड मोर इंटरेस्टिंग, फिर थोड़े बाद उस चीज को आप और पॉपुलराइज करो. फर्स्टली तो मैं आपको बोलूंगी एकदम से पेड की एक्टिविटी के लिए मत जाइएगा, पहले अपने ग्रुप्स में ही शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. दिस इज समथिंग व्हिच इज एन आई वुड से ऑर्गेनिक वे टू डू इट. एंड देन वंस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन ऑडियंस, समझो आपकी 100 ऑडियंस भी आ रही है, यू कैन कीप अ ट्रैक. आप गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हो कि इतने यूजर्स आए हुए हैं मेरे पर्टिकुलर वेबसाइट पे. ठीक है, आप देख सकते हो कि इतने लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. दैट्स वेयर इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन राइटिंग द सेम टाइप ऑफ टॉपिक अगेन. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सबसे अपने फीडबैक्स मांगो जब भी आप नया कंटेंट पब्लिश कर रहे हो. जैसे अभी आप मेरी वेबसाइट देख रहे हो, मैंने आई गेस लास्ट कंटेंट वाज ऑन ये वाला था,
Ranveer Singh wala, which he had gone naked wala. So we got a little bit, more of a feedback on that. We should write some more content like ये थोड़े ऐसे controversy वाले topics होने चाहिए. So that is how you should try taking feedbacks from everyone, and not only with your own. Now this is something which is a group. Okay, आप यहाँ पे इस group पे आए हुए हो. इस ग्रुप पे भी आप अगर है ना लोगों के साथ शेयर करोगे, आई एम श्योर दे विल शेयर इट फर्दर कि look, this is our co-colleague or co-student who has started a website and we should also go and visit it. So I'm sure अगर विकास के अगर कोई friends है who would like to learn more about whatever your offerings are or your services are, they might want to reach out to you via this content. Similarly, Salma finds your content to be more interesting, she will actually reach out to you directly. So this is how you are trying to create networking as well. You don't have to be dependent on Fiverr or Upwork for that. मैम Yes. मैम जैसे किसी एखादे मतलब रिनोन्ड पब्लिशर की कोई किताब हो, मतलब राइटर की, और वो जो है मतलब उतनी लाइमलाइट में नहीं आई हो, लेकिन हमको पता है कि वो बहुत बेहतरीन थी, इसीलिए उसके ऊपर मूवी बनी और मूवी जो है वो हिट हुई. तो क्या हम उस बुक का रिव्यू लिख के जो है अपने ब्लॉग के थ्रू You can. तो क्या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह हो सकते हैं, जैसे एफिलिएटेड मार्केटिंग जैसे ये प्रकार हो सकता है सर, हो सकता है. तो हम बोलते हैं उस चीज को एडसेंस. तो आपके पास एक डिसेंट ट्रैफिक आने लगेगा ना, जैसे अगर मैं बोलूं 1000 यूजर्स आ गए या 10,000 यूजर आ गए, देन स्टार्ट इंजेक्टिंग एडसेंस. मतलब बेसिकली एड का गूगल का कोड होता है, आपको वो अपने वेबसाइट पे डालना है, एंड वंस you start having a decent traffic, अपने आप आपको है ना बेसिकली एड्स रन होना भी शुरू होता है. दैट इज हाउ यू कैन डू अ मोनेटाइजेशन ऑफ योर ओन कंटेंट. बट तो क्या पहले मैम हम हमारे ब्लॉग का इस्तेमाल शुरुआती दौर में जो है बुक्स के रिव्यूज करके उसके प्रमोशन के लिए ही कर सकते हैं? you can see, that's what I'm saying, whatever your interest is. अगर आप बोल रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है रिव्यू करने में, या आपका इंटरेस्ट है कुछ नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने में, you can do that. See, whatever you're interested, so you can basically start with small thing. अभी जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मेंशन की, इज मोर इनटू आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, and I have injected the ads as well. That means मेरे वेबसाइट पे I have added the Google AdSense code as well. It's just because I was pregnant, so I couldn't look at my website for some time. Now I have a baby which is 3 months old, so now I have a little bit of time to look after my website. Now I can start monetizing it. I can start working on my website again. Sounds good? Yes, So yes ma'am. It was Yeah. pleasure connecting with you all on a Sunday, and I will see you next week. Thank you so much, everyone. Thank Yeah, you, ma'am. thank you very much. Thank you very much. Ma'am, Bye thank bye. Bye-bye. Bye bye. चलो जाओ अपने अपने घर जाओ. सर की आवाज सुनने के बाद ही जाएंगे क्या? कहाँ है सर, कहाँ है? सर को बता. है ना, सर की तबीयत तो ठीक है ना अभी? मोहिनी मैडम आएंगी तो बताएंगे. असाइनमेंट हो गया आप लोग? नहीं, आज करेंगे ना, अभी करेंगे थोड़ी देर में. असाइनमेंट हो गया, क्विज रह गई है. एक्चुअली मेरा वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहता है ना, बेटे को भी देखना होता है, उसके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, वो भी मूवी बना रहा है, उसको भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, ही इज इनटू यूनिवर्सिटी. तो सर से रिक्वेस्ट करके है ना हम वो लिंक्डइन की, अपवर्क की प्रोफाइल्स वगैरह किस तरीके से है ना कंप्लीट बनाते हैं. मतलब हम कुछ तो डाटा उसमें डाल दे रहे हैं, लेकिन है ना वो अप टू मार्क परफेक्शन पे नहीं जाता है. और जब तक वो है ना अप टू मार्क परफेक्शन पे नहीं जाता ना, तब तक हमें मतलब कोई रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता. तो जैसे सर से मैंने बात की, सर बोल रहे थे कि मेजोरिटी अगर मतलब कहती है आपके बैच की, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लगाऊंगा करके. तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम. सबके क्योंकि काम बहुत ही आने. इम्पोर्टेंट Yes, है. एक बार सीख लेते हैं तो मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ही सकते हैं अपन फिर. बिल्कुल. तो लगता है आज तो सर नहीं आने वाले. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर अभी मिलते हैं फिर. ओके, बाय. बाय बाय. टेक केयर. सर.